بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی گزارنے کے لیے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا. زمین، آسمان، ہوا، سورج، چاند، پانی، اس طرح کی کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. ان نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر چند لمحے کے لیے بھی ہمیں میسر نہ ہو تو ہم زندہ نہ رہ سکیں. ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت یہ رمضان کے روزے ہیں. جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے ان میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے. جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، تندرست پر یہ واجب ہے کہ اس کے روزے رکھے. آپ لوگ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھیں. اگر کوئی شخص اسلام کے بتائے ہوئے حدود اور قیود میں رہ کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو پامال کرتا ہے، تو اس کے اسلام کا کوئی معنی نہیں. احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ایک مخصوص گیٹ مقرر کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس سے روزے دار بڑے نرالی شان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے داروں کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور بہتر و خوشگوار ہے، اس لیے کہ یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ روزے داروں کے لیے دوہری خوشی ہے، ایک دنیا میں روزہ افطار کرنے کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ روزہ یہ ایک عجیب خصوصیت رکھتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو منفرد عبادت ہے، جس میں ریا و نمود اور دکھلاوے سے پاک جو عبادت ہے، جو سراپا اخلاص پر مبنی عبادت ہے، جو عابد و معبود کے درمیان ایک راز ہے جس کا علم صرف روزے دار کو ہو سکتا ہے یا پھر حق تعالیٰ کو ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر عبادات نماز، حج، جہاد وغیرہ کی ایک ظاہری صورت اور حیت ہوتی ہے، لیکن روزے کی ایسی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے کوئی ادراک کر سکے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، کتنا فاسق و فاجر، کتنا گیا گزرا شخص ہو، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہوتا ہے، شدید پیاس لگی ہوتی ہے، کمرے میں تنہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، دروازے پہ کنڈی لگی ہوتی ہے، کمرے میں فریج ہوتی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ شدید پیاس لگی ہے، لو پانی پی لیں، لیکن کیا وہ فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پانی پیتا ہے؟ ہرگز نہیں پیتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ پی لے کسی کو کان خبر نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ روزے سے نہیں ہے، وہ شام کو آرام سے نکل کر کے اور لوگوں کے ساتھ افطاری کر سکتا ہے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ روزے دار ہے۔ لیکن کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، دوسرے لوگ اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا مالک اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اجر و ثواب کا معاملہ بھی عجیب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزے کا اجر و ثواب دینا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک طرف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے کا اجر و ثواب دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ عشر امثالها
इला सबमियत ज़िफ़ इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। इब्ने आदम का हर अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है, 10 से लेकर के 700 गुना तक के, लेकिन रोजा क्योंकि मेरे लिए रखा जाता है इसलिए उसका बदला मैं ही दूंगा। यानी बाज़ अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका अमल 10 गुना देता है, बाज़ का 70 गुना, बाज़ का 100 गुना, यहाँ तक कि सदक़े के बारे में आता है कि उसका 700 गुना अजर मिलता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके लिए कहता है कि फ़इन्न सौम ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा सिर्फ मेरे लिए रखा जाता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। इसलिए कि मेरा बंदा उस वक्त जबकि प्यास से उसके हलक में कांटे लग रहे थे, जबान खुश्क हो रही थी, कमरे में तनाव था, फ्रिज में पानी मौजूद था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन मेरे बंदे ने पानी, ठंडा पानी निकाल कर नहीं पिया, इस ख्याल से कि मैं मेरे डर की वजह से और इस वजह से कि क़यामत के दिन मेरे सामने उसे हाजिर होना है, जवाबदेही देनी है, जवाबदेही करनी है। इसीलिए रोजे को तकवा का सबब कहा गया है। यही चीज तकवा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के डर से, अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी से बच जाना, यही तकवा है। गोया रोजा तकवा की एक शक्ल भी है और रोजा तकवा के लिए एक सीढ़ी भी है। रोजे के माना है खाने पीने और ज़ौजैन के दरमियान जायज़ ताल्लुकात से सुबह सादिक से लेकर के और गुरूब आफ़ताब तक रुक जाना, यानी इन चीजों से रुकना जरूरी है। आप गौर करें कि खाना पीना और ज़ौजैन का बाहम ख्वाहिशात नफ्सानी को पूरा करना, ये ऐसे आमाल हैं जो फी नफ्सी हलाल हैं। खाना हलाल है, पीना हलाल है, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक कायम करना हलाल है। अब अगर हम रोजा रख करके इन हलाल चीजों से तो बच रहे हैं, लेकिन जो चीजें पहले से हराम थी अगर हम उनको कर रहे हैं तब फिर हमारे रोजे से क्या फायदा होगा। गीबत जो पहले से हराम है, गीबत कर रहे हैं, झूठ जो पहले से हराम है, रोजा रख करके हम झूठ बोल रहे हैं, बदनिगाही जो पहले से हराम है, रोजा रख करके टाइम पास करने के लिए गंदी फिल्में हम देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों रोजा रखने से फिर क्या फायदा होगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा, कि जो शख्स रोजा रखते हुए झूठ बोलना, उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो फिर अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई शख्स रोजा रख करके झूठ बोल रहा है, यकीनन उसका रोजा सही होगा। किसी मुफ्ती से आप पूछेंगे कि मैंने रोजा रखा, रोजा रखते हुए झूठ भी बोला है, तो आपको यही फतवा देगा कि तुम्हारा रोजा सही है, कज़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या रोजे का सवाब, रोजे की बरकत उसे हासिल होगी? नहीं, नहीं हासिल होगी। इसलिए कि रोजे की जो रूह थी वो रूह उसने हासिल नहीं की। कि रमजान का महीना ये हमारे लिए तकवा के लिए एक अमली तरबियत है। हमें चाहिए कि हम उसमें तरक्की करें, उसमें ज्यादती करें। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से हम, उसके डर से हम प्यास के बावजूद पानी नहीं पीते हैं, भूख के बावजूद खाना नहीं खाते हैं, इसी तरह जब हम कारोबारी जिंदगी में हम निकलें तो और हमारे दिल में अल्लाह ताला की मासियत और नाफरमानी का कोई जज्बा, कोई दायरा पैदा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के डर से हम उन चीजों से रुक जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तब याद तब जाने कि हम अपनी जो हमारी तरबियत जो मकसूद थी वो तरबियत हम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं, हम अल्लाह के डर से रोजा रख रहे हैं,
भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब हम कारोबारी जिंदगी में होते हैं तो हम गलत बातें सुन रहे होते हैं, गलत चीजें देख रहे होते हैं, गलत बातें ज़बान से निकाल रहे होते हैं, तो मेरे भाइयों फिर वो तरबियत हमें कहाँ हासिल हो सकती है। जिस तरह से मरीज को इलाज के साथ साथ परहेज की जरूरत होती है, इसी तरह से हमें भी तकवा के साथ साथ, रोजे के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और नाफरमानियों से परहेज करना जरूरी है। आप देखें, अगर आप किसी कमरे में एसी लगाते हैं तो उसका तकाजा ये कमरा ठंडा हो, लेकिन अगर आपने एसी चालू कर दी, सारे दरवाजे खोल दिए, सारी खिड़कियां खोल दी, तो उस एसी से कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर हम रोजा रख करके अल्लाह की मासियत और नाफरमानी के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, खिड़कियां खुली रखी हुई हैं, तो मेरे भाइयों इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरत है कि हम रोजा रखने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और उसकी नाफरमानियों से बचें। और रोजे के दौरान हर किस्म जो कोई भी खामी, कोई भी कमी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे रोजे में कोई कमी और कोई खामी पैदा ना हो, और हर उस अमल से जो रोजा को फासिद करने वाला हो, या रोजा के अजर को जाये करने वाला हो, या रोजा के अजर को कम करने वाला हो, उन चीजों से हम बचें। बहुत से रोजे के दौरान बहुत से मसाइल का लोगों को सामना करना होता है और लोग बहुत से मसाइल पूछते रहते हैं। उन्हीं में से कुछ मसाइल का तज़किरा किया जाता है। सबसे पहले आप ये जानें कि रोजा तोड़ने वाली चीजें क्या हैं। पहली चीज, रोजे के दौरान दिन में अपने बीवी से हम बिस्तरी करना, इससे रोजा टूट जाता है। रोजे के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना, इससे रोजा टूट जाता है। अलबत्ता रात में रोजेदार के लिए इजाजत है कि रात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। अगर कोई शख्स रोजे के दौरान अपने बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उस पर 4 अहकाम वाजिब होते हैं। सबसे पहली चीज, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। दूसरी चीज, रोजा तोड़ने वाली जितनी चीजें हैं उनसे वो बचा रहे। ये नहीं कि उसका रोजा टूट गया तो खाता पीता रहे, नहीं, जरूरी है कि उन तमाम चीजों से बचता रहे। और तीसरी चीज, कज़ा, जरूरी है कि बाद में उस दिन का कज़ा करे, उसके बदले में एक दिन का रोजा रखे। और चौथी चीज, कफ़ारा है। अगर कोई शख्स दिन में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसके लिए 3 चीजों में से कोई 3 चीजें करनी है। पहला ये कि वो गुलाम आजाद करे। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो फिर 2 महीने मुसलसल रोजा रखे। अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। गोया अगर कोई शख्स अपने बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उस पर 4 अहकाम हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार करे और रोजा तोड़ने वाली तमाम चीजों से बचा रहे। तीसरा, कज़ा करे, और चौथा, कफ़ारा अदा करे, जो कि गुलाम आजाद करना है। गुलाम आजाद ना कर सके तो 2 महीने मुसलसल रोजा रखे। अगर इसकी भी ताकत ना हो तब फिर वो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। दूसरी चीज जिससे रोजा टूट जाता है, जानबूझकर खाना खाना। रोजे के दौरान अगर कोई शख्स जानबूझकर खाना खाता है तो उसका रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स भूल चूक करके खाना खा ले तो उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता जो ही याद आए फौरन ही उसको उगल देना जरूरी है। यानी मुंह में लुकमा है, मुंह में पानी का घूंट है, उसको याद आ गया तो फौरन उसको निकाल दे। इसी तरह अगर कोई शख्स रोजे के दौरान थूक निगल लेता है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन बलगम और रेंट अगर मुंह तक के आ जाए तो उसका उगल देना जरूरी है, इसलिए कि यह ऐसी चीज है कि उससे बचना मुमकिन है, कोई दुश्वार नहीं। इसलिए अगर बलगम या रेंट मुंह तक आ जाए तो उसका उगल देना जरूरी है। रोजेदार के लिए आंख में दवा डालना, कान में दवा डालना, आंख में सुरमा लगाना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, तेल लगाना,
ठंडक की वजह से सर पे ठंडक हासिल करने के लिए सर पर पानी डालना, गरगरा करना, अलबत्ता गरगरा उसकी दवा पेट तक ना पहुंचने पाए। वैसे बेहतर यह है कि आदमी गरगरे से महफूज रहे। ये इन तमाम चीजों से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई शख्स नाक में दवा डाले और दवा का असर हलक में महसूस हो, पेट तक महसूस हो, तो उसका रोजा टूट जाएगा। तो दूसरी चीज जिससे रोजा टूटता है वो खाना पीना, और तीसरी जानबूझकर खाना पीना, और तीसरी चीज जिससे रोजा टूट जाता है वो ऐसी चीज जो खाने पीने के हुक्म में हो, जैसे ताकत के लिए या ग़िज़ा के लिए इंजेक्शन लगवाना। अगर कोई शख्स ताकत का इंजेक्शन रोजे के दौरान लगवाता है तो उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इलाज के लिए नस में या कहीं पर भी बगैर ताकत या बगैर ग़िज़ा का इंजेक्शन लगवाता है तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। चौथी चीज जिससे रोजा टूट जाता है वो शहवत से मनी का खारिज करना। कोई ऐसा अमल आदमी करे जिसकी वजह से उसके शर्मगाह से मनी निकले तो उससे रोजा खारिज हो जाए, उससे रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स सो जाए, सोने की वजह से सोने की हालत में एहतलाम हो जाए तो उससे उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से सींगी लगवाना, सींगी कहते हैं, पोछना जिसको कहते हैं, कि इलाज के लिए खून, गंदा खून उसको निकालते हैं। तो जो शख्स निकालता है, खून निकालता है या निकलवाता है, हदीस में आता है दोनों का रोजा टूट जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी का नक्सीर फूट गया और नाक से खून निकल आया, या दांत टूटने की वजह से खून निकल आया, या किसी और जख्म की वजह से खून निकल आया, तो उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई शख्स टेस्ट के लिए, जांच के लिए अगर खून देता है तो उससे भी रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिर्फ पोछने का खून, पोछना लगवाने के लिए जो खून निकाला जाता है उससे रोजा टूट जाता है। इसी तरह से रोजा तोड़ने वाली चीजों में से जानबूझ कर तय करना है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके तय करता है, अपना हाथ डाल करके या जानबूझ करके कोई ऐसी चीज सूंघता है जिसकी वजह से उसको कय आ जाता है तो उसका रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर खुद से अगर कय आ जाए तो उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से औरत का हैज और निफास का खून आ जाना, इससे भी रोजा टूट जाता है। जो ही औरत का खून आना शुरू हुआ उसका रोजा दुरुस्त नहीं होगा, ना तो रोजा दुरुस्त होगा, ना ही उसके लिए रोजा रखना जायज है। अलबत्ता इस्तिहाजा का खून से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। इस्तिहाजा का खून कहते हैं कि औरत के माहवारी की जो आदत होती है उसके बाद भी अगर खून जारी रहे तो उसको इस्तिहाजा का खून कहा जाता है, यानी बीमारी का खून हुआ है, उससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये चंद चीजें हैं जो रोजे को तोड़ने वाली चीजें हैं। इसी तरह देखा जाता है कि रोजे के दौरान हमारे बहुत से भाइयों से बहुत सारी गलतियां सरजद हो जाती हैं, उनकी तरफ इशारा करना सिर्फ मकसूद है। हमारे बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो खाने के दौरान, जो सहरी के वक्त लेटे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और जब अजान की आवाज सुनते तोड़ करके पानी पीने लगते हैं। ये बहुत ही गलत है और बसा औकात इससे आपका रोजा फासिद हो सकता है, इसलिए कि खाने पीने की इजाजत सुबह सादिक तक के दी गई है, और रोजा ये अजान सुबह सादिक के दाखिल होने का ऐलान होता है। खास तौर पर ऐसे वक्त जबकि मुअज्जिन वक्त का पाबंद हो, ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स अजान सुन करके खाना खा रहा है या पानी पी रहा है तो उसका रोजा फासिद हो सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये मसला है कि अगर कोई शख्स पहले से पानी पी रहा है, हाथ में उसके गिलास है, और ऐसी सूरत में अजान शुरू हो गई तो उसके लिए यह हुक्म है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले, फिर गिलास को रखे। इसी तरह से ये होता है कि लोग खाते पीते रहते हैं और अजान का जवाब नहीं देते। हालांकि अजान का जवाब हर वक्त देना जरूरी है। सिर्फ हम्माम के वक्त आदमी हो उस वक्त अजान का जवाब नहीं देगा, लेकिन खाते पीते वक्त भी अजान का जवाब देना जरूरी है। हदीस में आता है जब तुम में से कोई शख्स मुअज्जिन की अजान को सुने तो जिस तरह मुअज्जिन कहता है वैसे उसका जवाब दे। अपने यहाँ ये तस्वुर पाया जाता है कि खाने के दौरान ना तो बात कर सकते हैं, ना खाने के दौरान सलाम कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई वो नहीं। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चुपके से खामोशी के साथ खाना ये अजमियों की आदत है, इसकी मुखालफत करनी चाहिए।
बहुत सारी हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के दौरान बातचीत किया करते थे। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में थे और आपके सामने दस्त का गोश्त पेश किया गया और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आपने उससे नोचा, दांत से नोचा और फिर फरमाया कि क़यामत के दिन मैं अव्वलीन और आखिरीन का सरदार रहूंगा। और उसके बाद लंबी हदीस बयान की। एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और पूछा कि क्या घर में कोई सालन है, तो घर जवाब मिला कि नहीं, बस सिरका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खा रहे थे और कह रहे थे नेमल अदामुल खल, नेमल अदामुल खल, बेहतरीन सारत सिरका है, बेहतरीन सारत सिरका है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हज़रत अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे, उनका हाथ बर्तन में इधर उधर फिर रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया कि बेटे दाहिने हाथ, बेटे अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह कहो, दाहिने हाथ से खाओ और अपने करीब का खाओ। इससे मालूम हुआ कि खाने के दौरान बात करना, सलाम का जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि दस्तरखान को तालीम और तबलीग के लिए इस्तेमाल करना ये बेहतर है। इसी तरह से उम्मन देखा जाता है कि सेहरी और इफ्तारी के वक्त लोग खाने के इंतजाम में लगे रहते हैं और दुआ नहीं करते, हालांकि उस वक्त के दुआ की बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है कि उस वक्त की दुआ अल्लाह तबारक तआला कबूल कर लेता है। इसलिए ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम गपशप करने के बजाय इफ्तारी से पहले, सेहरी से पहले अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते रहें। इसी तरह ये भी देखा जाता है कि लोग इफ्तारी से पहले दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ सही हदीस से साबित नहीं बल्कि ज़ईफ़ हदीस है। इसलिए इस दुआ के बजाय हम बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर बाद में जो दुआ है ज़हबत ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ साबित है। इसलिए इफ्तारी से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें और बाद में हम ज़हबत ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इस्लाम की एक और अजीम तालीम ये है कि जब कोई शख्स इफ्तार की या कोई भी दावत दे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ उसके लिए कहें, दुआ दें। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग शुक्रिया अदा करते हैं, बातचीत करने में लगे रहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स इफ्तारी की दावत दे तो इफ्तारी की दावत देने खाने के बाद आदमी ये दुआ पढ़े, अफ़्तरा इंदकुमुस साइमून व अक़ला तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका या व नज़लत अलैकुमुल मलाइका। या दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा अत्इम मन अतमनी वस्क़ी मन सक़ानी या अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। जब कोई हमें इफ्तारी की या वैसी ही दावत दे तो हमें इन दुआओं को पढ़ना चाहिए। एक और चीज जो देखी जाती है आमतौर पर लोग इफ्तारी करने में लगे रहते हैं, खाते रहते हैं, यहाँ तक कि जमात छूट जाती है। नहीं, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। ये है आप थोड़ा इफ्तारी करके और इफ्तारी करके नमाज के लिए जाएं और फिर उसके बाद में आकर के इत्मीनान से आप खाना खाएं। ऐसे ये भी देखा जाता है कि कुनूत वितर में लोग जब दुआ पीछे खड़े होते हैं और इमाम जब पढ़ता है इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत, तो उसके जवाब में लोग आमीन कहते हैं। हालांकि वहां पे आमीन नहीं कहना है, इसलिए कि आमीन का मतलब होता है अल्लाह को कबूल कर ले। ये जुमले जो हैं ये दुआया जुमले नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ के जुमले हैं। इसलिए ऐसे मौके पर हमें सुभान अल्लाह या सुभानक कहना चाहिए। इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक, ऐ परवरदिगार बेशक तू ही फैसला करने वाला, तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं करता। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, जिससे तू मोहब्बत करता उसको कोई जलील नहीं कर सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और जिससे तू दुश्मनी करता उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये सब तारीफी जुमले हैं। इसलिए इन मुकामात पर हमें आमीन कहने के बजाय सुभान अल्लाह या सुभानक कहना चाहिए। ऐसे एक चीज और देखी जाती है कि लोग जब मस्जिद में आते हैं और इशा की जमात फौत हो जाती है तो पीछे खड़े होकर के तन्हा या जमात कायम करके नमाज पढ़ने लगते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इमाम के पीछे जो तरावी पढ़ा रहे इमाम, उनके पीछे फर्ज की नीयत से दाखिल हो जाए और जब इमाम 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दे तो फिर खड़े होकर के वो अपनी 2 रकात पूरी कर ले, ताकि ना उनको तशवीश हो और ना इमाम को तशवीश हो। और ये साबित है, हदीस से साबित है
कि सुन्नत पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज अदा की जा सकती है। हजरत मुआज बिन जबल, बुखारी की रवायत है, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो ईशा की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में पढ़ा करते थे, फिर वो जा करके अपने मोहल्ले की मस्जिद में इमामत किया करते थे। तो उनकी फर्ज नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में होती थी, और अपने मोहल्ले में जो लोगों की इमामत करते थे वो उनकी नफिल नमाज सुन्नत नमाज होती थी, और उनके पीछे लोग फर्ज नमाज की नीयत से पढ़ते थे। तो सुन्नत पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज की नीयत से आप दाखिल हो सकते हैं। इसलिए बजाय इसके कि इमाम तरावी पढ़ा रहा हो और आप पीछे आकर के जमात कायम करें, नहीं, उससे बेहतर यह है कि आप तरावी की नमाज में आप जमात में शामिल हो जाएं, इशा की नमाज की नीयत करके, और फिर जब वो सलाम फेर दे तो खड़े होकर के 2 रकात आप नमाज पढ़ लें। ये चंद चीज़ें थी जो रोज़े और के मसाइल के मुताल्लिक थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सही तरीके पर किताब और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने और तमाम इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे जो टूटी फूटी इबादतें हों अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।